स्टार्ट कर लें बेटा। जी सर। सभी लोग हैं बेटा, एलटीए जूनियर्स एंड सीनियर्स। यस सर। कैलोरीमेट्रिकल कहाँ तक करे थे हम लोग? सर n नंबर ऑफ लिक्विड्स मिक्स करे थे वो सर। अच्छा, वो फॉर्मूला देख लिया आप लोग सभी लोग, एन नंबर का, एन नेचुरल नंबर्स, स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर्स, क्यूब ऑफ नेचुरल नंबर्स का फॉर्मूला देख लिए सभी लोग? देख लिए सर। चलो, नेक्स्ट वन बेटा, very important in calorimetry, especially for NEET examinations and mains examination. Phase change, phase change and latent heat, and latent heat. Latent मतलब hidden energy which is been hidden in a system is called as of your latent in Greek language. ठीक है ना? See here, very important in terms of numericals for JEE mains and as well as of NEET के लिए बेटा, और बहुत अच्छा वाला टॉपिक है और बहुत आसान टॉपिक भी है, बट ओनली थिंग इज यू नीड टू फॉलो ए बेसिक प्रिंसिपल हाउ टू डू सच टाइप ऑफ योर क्वेश्चंस. सो कैलोरीमेट्री में वेल लेट्स से अगर अपने पास एक सॉलिड है, मान के चलिए फॉर एग्जांपल वी आर हैविंग ए सॉलिड. सॉलिड को क्या हम लोग लिक्विड में कन्वर्ट कर सकते हैं क्या? जैसे आइस क्यूब है, आइस क्यूब सॉलिड स्टेट में होता है, अगर उसको मेल्ट कर दें तो क्या लिक्विड भी बन जाएगा? Then solid can also be directly converted into vapor, directly converted into your vapor. हो सकता है कि नहीं हो सकता? Steam है कि नहीं? So now see, we don't talk about right now here, we don't talk about phase change from solid to vapor, from solid to vapor डायरेक्टली हम लोग नहीं बात करेंगे, ठीक है? सो वी डोंट टॉक अबाउट द फेज चेंजेस फ्रॉम सॉलिड टू वेपर. किसके बारे में बात करेंगे? सो विल टॉक अबाउट सॉलिड्स मेल्ट्स, यानी liquid may be converting into solid or a liquid may be converting into your vapor. So we'll be talking about your liquid जो सॉलिड में कन्वर्ट हो सकता है, जैसा वाटर को अगर आप फ्रीज कर दो तो कन्वर्ट हो सकता है, या लिक्विड को डायरेक्टली आप हीट कर दो तो ये वेपर में कन्वर्ट हो सकता है. So we are talking about the stage where you are going to either convert the liquid into solid or liquid into vapor. We are not talking about a state where we directly convert solid to vapor condition. This is a process through which we will be converting. Is that point clear here? Is that point clear? तो phase change मतलब क्या? We are talking about the phase change either from solid to liquid or from liquid to your vapor, but we don't talk about the solid change from directly solid to vapor part of relation. ठीक है ना? तो देखो इसके अंदर जो एनर्जी होती है, हिडन एनर्जी व्हेन ए सॉलिड व्हिच हैज बीन गेटिंग कन्वर्ट, that is given by the formula delta Q is equals to m into your L. Delta Q is equals to m into your L part of relation. L क्या होता है बेटा? L is known as of your latent heat. L is known as of your latent heat. अगर कोई लेटेंट हीट का डेफिनेशन पूछ दे तो क्या लिखोगे बेटा? लेटेंट इज रिप्रेजेंटेड बाय डेल्टा एल. एल इज इक्वल्स टू अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट द यूनिट मास ऑफ द चेंज स्टेज, यानी एल इज इक्वल्स टू डेल्टा क्यू बाय योर एम, डेल्टा क्यू बाय योर एम पार्ट. तो इसकी यूनिट क्या हो सकती है बेटा? जॉल पर केजी हो सकती है या कैलोरी पर ग्राम हो सकती है. सो व्हाट विल बी द यूनिट्स फॉर दिस वन? कोई बता सकता है? लेटेंट यूनिट, लेटेंट हीट की यूनिट Q is measured either in joules. Q is nothing but form of energy है ना, जॉल पर केजी हो सकता है
Yeah, it can be either calorie per your gram, calorie per your gram per definition. So Q is equals to M into L. Delta Q is nothing but of your amount of heat given, and M is nothing but of your mass, and L is nothing but of a constant. जो proportionality निकालने के बाद आता है अपने को L बोलते हैं उसको. That L is of your latent heat. So L is equals to ratio of the amount of heat given for a unit mass to convert it from one state to the another state is called as of your latent heat. And unit of this one is joule per kg or calorie per your gram. Is it clear for everyone? So this is only the formula which you need to remember your phase change. Delta Q is equals to M into your L. ठीक है. Yes, sir. अब ये देखो बेटा, latent heat of ice, latent heat of ice, और उसको हम लोग बोलते हैं latent heat of your fusion, रिप्रेजेंट करते हैं LF से. That is almost all equal to your 80 calorie per gram. 80 calorie per gram. Yeah, this is also equal to 6 kilojoule per your mole. 6 kilojoules per your mole. Or this is also equal to 336 kilojoule per kg. So ये पूरे इसके कन्वर्शन से जिसको हम लोग को याद रखना है, बिकॉज कैलोरी की वैल्यू मालूम है अपने को और वो वैल्यू डालना है, ग्राम को भी हम लोग मोल्स में कन्वर्ट करना है. तो पूरे कन्वर्शन करने के बाद यूनिट से तो डायरेक्टली आप याद रख लो. जनरली 90% केसेस के लिए हम लोग ईटी यूज करते हैं. latent heat of your ice or latent heat of your fusion is equal, समझ बेटा, 80 calorie per gram or 6 kilojoule per mole or 336 kilojoule per your kg. क्लियर है? Yes, sir. उसी तरह से सेकंड वन, latent heat of your steam, latent heat of steam और latent heat of your vapor बोलते हैं इसको, जिसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं LV से. So that is equal to how much for me? 540 calorie per gram. 540 calorie per gram, or that is 40.8 kilojoule per mole. Kilojoule per mole. सर इसको अप्रॉक्स 41 ले सकते हैं ना? 2260 kilojoule per kg. हाँ बेटा, सर अप्रॉक्स 41 ले सकते हैं ना सर इसको? हाँ अप्रॉक्स 41 ले सकते हैं. अगर कुछ भी नहीं दिया तो वी कैन टेक. जनरली ये दो वैल्यूज वो लोग देंगे. अगर नहीं दे रहा है तो देन यू नीड टू रिमेंबर दिस वन, और यू कैन टेक अप्रोक्सीमेट एंड यू कैन डू द प्रॉब्लम. दैट्स नॉट ए प्रॉब्लम. लेकिन जनरली प्रॉब्लम्स के लिए हम लोग 90% 540 का ही कंडीशन लेके यूज करते हैं, अनलेस एंड अनटिल स्पेसिफिकली गिवन बाय दिस रिलेशंस इन द किलोजूल्स और मोल और केजीस में दिया तो ये वैल्यूज यूज कर लेंगे. तो दो वैल्यूज आ गए अपने, लेटेंट हीट ऑफ योर आइस और लेटेंट हीट ऑफ योर वेपर. लेटेंट हीट ऑफ योर आइस कितना है बेटा? 80 कैलोरी पर योर केजी ग्राम. And latent heat of steam or latent heat of vapor is how much for me? 540 calorie per your gram. Clear है? Yes, sir. चलो, Yes. ये लिख लो बेटा जल्दी से. Journey of your ice. Journey of ice. देखो बेटा, ये क्या होता है देखो यहाँ पर बेसिकली. आइस मान के चलो ये है आइस एट -20 डिग्री सेंटीग्रेड. ठीक है ना? आइस एट -20 डिग्री सेंटीग्रेड will convert into ice at 0 degree centigrade. ठीक है? Ice at your 0 degree centigrade, 20 degree centigrade will convert into ice at your 0 degree centigrade. Then this ice will convert into water. Will convert into water at your 0 degree centigrade. Will convert into water at your 0 degree centigrade. Then this water at 0 degree centigrade will convert into water at your 100 degree centigrade. Will convert into water at your 100 degree centigrade. Then this water will convert into steam. This will convert into steam at your 100 degrees Celsius. So this is your journey of your ice. देखो यहाँ पर सॉलिड है, ये भी सॉलिड है, लेकिन टेम्परेचर डिफरेंस है. ठीक है ना? ये भी आइस है, ये भी आइस है, तो बोथ ऑफ देम आर इन सॉलिड, लेकिन टेम्परेचर डिफरेंस है. तो यहां से यहां तक कन्वर्ट करने के लिए इसको जो एनर्जी यूज होती है बेसिकली वो होती है Q1, and that Q1 is equals to M into your specific heat of your ice into your temperature difference, that is nothing but delta T. ठीक है ना बेटा? Yes, sir.
then यहाँ देखो ice is converted into water, यानी solid state is been converted into water, solid ML. state is converted into water, temperature difference is same. तो यहाँ पर जो energy use होती है change in That- state के लिए कभी भी आता है तो m into L of your ice ले लेना है. अगर ice water में convert कर रहा है तो energy will be Q is equals to m into latent heat of your ice, that is nothing but of your m into your L of your ice. Then see, water is converted again into water, there is no change in state, लेकिन टेम्परेचर चेंज हो रहा है, 0 से 100 जा रहा है, तो यहां पर जो एनर्जी यूज हो रही है दैट इज Q3. दिस Q3 is equals to m into your specific heat of your water into your delta T, into your delta T. Is it clear? Yes, sir. Then here यहां पर देखो water is converting into steam, तो there is a change in phase, water is converting into vapor, तो यहां पर जो एनर्जी यूज होती है that is your Q4. Q4 is equals to m into your latent heat of your steam or latent heat of your vapor. Clear है? Yes, sir. Clear, sir. Clear. पक्का? पक्का. Yes, sir. Yes, sir. इसके अंदर और एक पॉइंट भी लिख लो बेटा, इसके अंदर एक स्टार मार्क डाल के, स्पेसिफिक हीट ऑफ योर आइस, specific heat of your ice is equals to 1/2. Specific heat of water, specific heat of water कितना बेटा? 1. 1. Specific heat of steam, specific heat of your steam is also equal to half. ठीक है ना? ये पूरा डाटा अपने को दिमाग में याद रखना है बेटा. Specific heat of your steam कितना है बेटा? 1/2. Specific heat of your ice is also your 1/2. वैसे भी स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर अपने को मालूम है, दैट इज इक्वल्स टू हाउ मच ओनली 1. क्या यूनिट होगा 1? क्या यूनिट होगा? सीजीएस यूनिट की एसआई यूनिट? सर सीजीएस रहना सर. सीजीएस रहता है बेटा, कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेंटीग्रेड, कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेंटीग्रेड विल बी द यूनिट, तो दिस विल बी इन द सीजीएस यूनिट. ठीक है. स्पेसिफिक हीट ऑफ आइस कितना है? हाफ. स्पेसिफिक हीट ऑफ स्टीम कितना है? हाफ. स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर कितना है? 1. इज इट क्लियर? तो ये हो गया अपना जर्नी ऑफ आइस. अगर आइस और आइस सेम स्टेट में है, देयर इज नो चेंज इन स्टेट, देन यूज द फॉर्मूला Q is equals to ms into delta T. अगर इफ देयर इज अ चेंज इन स्टेट, अगर आइस वाटर में कन्वर्ट हो रहा है या वाटर आइस में स्टीम में कन्वर्ट हो रहा है, then use the change of state formula, that is Q is equals to m into latent heat of ice or Q is equals to m into your latent heat of your steam part of relation. Is that clear for everyone बेटा? क्लियर सर. क्लियर चलो सर. एक छोटा सा क्वेश्चन देख लो बेटा जल्दी से. मान के चलो आई एम हैविंग 10 ग्राम ऑफ आइस, 10 ग्राम ऑफ आइस एट -20 डिग्री सेंटीग्रेड, -20 डिग्री सेंटीग्रेड to the steam at 140 degrees centigrade, at 140 degrees centigrade. First of amount of heat required, amount of heat required, amount of heat required. करो जल्दी से. एक बार देख लो. ऐसे लिखने का, यहाँ से लिख दिया. एक तेलुगु, हिंदी और टेबल स्क्वायर से लेकर 70. चलो हो गया बेटा. देखो ये -20 डिग्री सेंटीग्रेड ऑफ योर आइस, -20 degrees centigrade of your ice will get convert into कितना बेटा? 140. Will get convert into 0 degree Celsius ice. 0 degree centigrade of your ice. ठीक है ना? Then this will convert into 0 degree centigrade of your water. 0 degree centigrade of your water. Then 0 degree centigrade of water will convert into your 100 degree centigrade of your water. Then 100 degree centigrade of water will convert into your
100 100 degree degree centigrade centigrade of of steam. your steam. ठीक है ना? तो यहां से यहां तक आने के लिए इसको एक एनर्जी होगी, that is nothing but Q1. Q1 is equals to m into your specific heat of your ice into your delta T. तो ये कितना आएगा बताओ कोई? मास कितना है 10 ग्राम्स, स्पेसिफिक हीट कितना है हाफ, टेम्परेचर की डिफरेंस कितना है बेटा, कोई बता सकता है क्या? 20. 20. T2 minus of your T1. हायर टेम्परेचर कितना है? 0. Initial temperature is -20, final temperature is 0. So 0 minus of minus, that will become for me plus. बताइए ना बेटा, 20. प्लस Yes, 20. sir. ये हो गया 20. तो ये कितना बना जल्दी से बताओ? 100. 100 कैलोरीज 100. बना सभी को? यहाँ देखो Q2 ice is converting into water, there is a change in state, phase 100. change हो रहा है, तो this ml. will be equal to m into L. Mass is nothing but 10, specific heat of your ice is equals to fusion 80, तो ये हो गया 800 800. कैलोरीज. क्लियर है? देन यहाँ पर हो गया Q3 is equals to MS water delta. to water temperature difference है, so it is m into specific heat of your water into temperature difference. तो मास कितना है 10, specific heat of water is how much 1 into temperature difference कितना है 100 minus 0 100, तो ये कितना आ जाएगा 1000. ठीक है? देन यहाँ पर कितना हो जाएगा Yes, sir. Q4 is equals to water is converting into steam, so it is m into L of your fusion. Mass is how much for me 10 into this one is how much for me your 540, 5. तो ये हो गया 5400 कैलोरीज. तो आंसर कितना आएगा कोई बता सकता है क्या? व्हाट इज द आंसर राइट नाउ? टोटल एनर्जी Q is equals to 140 डिग्री पे लेके जाना है. 7300. Q3 plus Q4 plus Q5. Q1 Q2 Q3 Q4 ही है ना बेसिकली. The 140 of steam maker है sir. सर 140 डिग्री को लेके जाना है अपने को. कहां तक जाना है? 140 तक जाना है. ओके, तो इसको और कन्वर्ट करना पड़ेगा मुझे. सो वी नीड टू कन्वर्ट दिस वन इनटू योर 140 डिग्री सेंटीग्रेड ऑफ योर स्टीम. 140 डिग्री सेंटीग्रेड ऑफ योर स्टीम. तो यहाँ पर क्या एनर्जी आ जाएगी इसमें? Q4. तो Q4 कितना हो जाएगा बताओगे? Q5 सॉरी Q5 is equals to steam है, there is no change in state but temperature difference है, so this will be equal to 10 into specific heat of the steam is half into 140 minus 100, that will be equal to how much for me 40. तो ये बना कितना मेरे पास 200 कैलोरीज बना. Yes, sir. ठीक है ना? so it is Q1 plus Q2 plus Q3 plus Q4 and ये हो गया Q5. अब सबको 7500. ऐड कर लो कितना आ रहा? this one is 100 plus this one is 7500. plus this one is your 1000 plus this one is your 5400 plus this one is your 200. तो फाइनल आंसर कितना आ रहा जल्दी से बताओ? 7500. 7500 कैलोरीज आ गया सभी को? Yes, sir. Yes. ठीक है, चलो Yes sir. और एक वाला देख लो जल्दी से. 10 ग्राम ऑफ योर आइस 10 gram of your ice at minus 40 degrees centigrade is converted to steam at 220 degrees centigrade. Heat required is how much? Heat required is equals to your how much? बताओगे? चलो जल्दी से करो. 10 gram of ice at minus 40 degrees centigrade will convert into steam at your 220 degrees centigrade. आ गया? 10 grams of ice at minus 40 degrees centigrade यानी minus 40 degrees centigrade of your ice, minus 40 degrees centigrade of your ice
will convert into what beta? 0 degrees centigrade of your ice. 0 degrees centigrade of your ice will get convert into your 13,500. 0 degrees 13,500. centigrade of water. 0 degrees centigrade of water. नहीं होता, आंसर रॉन्ग है. 0 degrees centigrade of water. 8,000 calories. Yeah, 8,000 calories. Very good. 8,000 calories is the answer. 0 degrees centigrade of water will convert into your 100 degrees centigrade of your water. Then 100 degrees centigrade of water will convert into कितना बेटा? 100 degrees Celsius of steam. 100 degrees centigrade या? 100 Of से steam. directly कहाँ जा रहा? 100 degrees centigrade of your steam. Then 100 degree of centigrade of your steam से कहाँ जाएगा ये? 220 degrees centigrade of your steam. Clear है? Yes, sir. चलो, तो यहाँ से यहाँ तक Q1 है, जल्दी से बता दो. Q1 is equals to मास कितना है? 10. Specific heat is 1. Temperature difference is 40. तो ये कितना आ गया? 2 1 जा 2 2 जा, यानी ये हो गया 200 कैलोरीज. तो यहाँ पर हो गया Q2. Q2 is equals to change in state. 10 आइस से वाटर में कन्वर्ट कर रहा है, तो M into your L. मास कितना है मेरे पास? 10. Latent heat of your ice is equals to how much for me? 80. तो ये हो गया 800 calories. The next one is nothing but of your Q3. Q3 water is converting into water to MS into delta T यूज करना है. मास कितना है मेरे पास बेटा? 10. Into specific heat of water is 1. Into temperature difference is your 100. So this will become for me your 1000 calories. Then यहाँ पर हो गया Q4. Water is converting into steam. That means L of M into your L of your steam. तो मास कितना है मेरे पास? 10 ग्राम. Latent heat of steam is how much for me? 540. तो ये हो गया 5400 calories. Then यहाँ पर हो गया Q5. Q5 is equals to mass is 10. Specific heat of your steam कितना है बेटा? Half into this one is nothing but equal to how much? 120. 220 minus 100. That will be equal to 120. तो ये कितना आ रहा बेटा? 2 1 जा 2 6 जा 6. तो ये कितना हो गया? 600 calories. अब ऐड कर लो पूरे को. So just add them. So total will be equal to how much? 9. 8,000. Q is equals to Q1 plus Q2 plus Q3 plus Q4. Plus Q5. Q1 plus Q2 plus Q3 plus Q4 plus Q5. ठीक है ना? तो सबको ऐड कर दो. So it is 200 plus 800 plus 1000 plus 5400 plus 600. तो कितना आ गया? 8,000. 8,000. 8000 कैलोरीज. आया सभी को? Yes, sir. तो ये Yes, वाला sir. तो सिंपल था. अगर क्वेश्चन है रहा तो ऑलमोस्ट लाइक अ सिंपल लेवल. तो ये दिस इज अ सिंपल लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑफ योर जर्नी ऑफ योर आइस. अब नेक्स्ट टॉपिक जाते हैं व्हिच इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस. दैट इज मिक्सिंग इन डिफरेंट फेजेस. Mixing in different your different phases. Mixing in different phases. Okay? मतलब क्या बेटा? देखो यहाँ समझने की कोशिश करो अच्छी तरह से. मैं क्वेश्चन के द्वारा समझा रहा हूँ, उसका थियरी कुछ नहीं है, बट यू नीड टू अंडरस्टैंड इट विद द हेल्प ऑफ योर क्वेश्चन ओनली. मान के चलो मेरे पास 4 ग्राम ऑफ योर आइस है. 4 ग्राम ऑफ आइस एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड प्लस 1 ग्राम ऑफ स्टीम. 1 ग्राम ऑफ योर स्टीम एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड और मिक्स्ड. ये प्लस मतलब क्या? मिक्स. ओके ना? 4 ग्राम ऑफ आइस is plus मतलब क्या? mixed with your 1 gram of steam at your 100 degrees centigrade. Find the final temperature. Find the final temperature of the mixture. Find the final temperature of the mixture. ठीक है ना? अगर आप कभी KFC मैकडोनल्ड वगैरह गए हो तो कोल्ड ड्रिंक के अंदर जब वो आइस डाल के देता है, आपका पूरा कोल्ड ड्रिंक हो जाता है, फिर भी आइस पूरा कन्वर्ट नहीं होता है. आपने देखा ऐसा सिचुएशन कभी? Yes. Yes, sir.
वही वाला है, आप मिला रहे हो, क्योंकि आप वाटर में अगर आइस क्यूब मिला रहे हो तो कभी कभी तो पूरा घुल जाता है, या कभी कभी पूरा पानी हो जाता है, लेकिन फिर भी आइस पूरा कन्वर्ट नहीं होता है कि नहीं। सिचुएशंस वैसे देखे होंगे ना आप लोग ने, फंक्शंस वगैरह में कभी होगा और देखा होगा, आप बड़े से उसके अंदर एक बड़ा सा आइस क्यूब डाल देते हैं, पूरा पानी हो जाता है, लेकिन आइस का आइस वैसे ही रह जाता है थोड़ा बहुत, यानी पूरा आइस को जो है ना मेल्ट नहीं होता बेसिकली। तो वैसे वाले कॉम्प्लिकेशन है पूरे यहाँ पर। तो व्हाट इज द कंडीशन यहाँ पर देखो, 4 ग्राम ऑफ योर आइस एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड, 4 gram of ice at 0 degree centigrade is mixed with your 1 gram of your steam at your 0 degree centigrade. ठीक है ना, समझ में आया सिचुएशन? Yes, sir. सर इसको हम लोग क्या करेंगे, विल बी यूजिंग द प्रिंसिपल ऑफ योर कैलोरीमेट्री बेटा। यूज प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमीटर, यूज द प्रिंसिपल ऑफ योर कैलोरीमीटर। So what is the principle of your calorimeter beta? Heat lost By colder body. must be equal to your heat gain. हीट Gain. गेंड Heat lost must be equal to your heat gain. Heat lost is equals to heat gain. Heat lost is equals to your heat gain. Heat lost is equals to your heat gain. किसी को याद है मेथड ये लॉन्ग टर्म के बच्चों को? अब देखो सिचुएशन क्या होता है यहाँ पर, 4 ग्राम ऑफ आइस एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड आपने जब स्टीम में मिलाया तो पूरा आइस क्या होना चाहिए, एक्चुअली कन्वर्ट हो जाना चाहिए, है कि नहीं? Yes. Isn't it? यस सर जनरली गेट कन्वर्ट, लेकिन क्या हो रहा है कभी कभी आइस ज्यादा है, स्टीम बहुत कम है। स्टीम कितना है मेरे पास, 1 ग्राम है। स्टीम कितना है, छोटा है, थोड़ा है, 1 ग्राम ही है। 1 ग्राम के अंदर आप 4 ग्राम ऑफ आइस मिला रहे हो, तो क्या पूरा आइस कन्वर्ट होने के चांसेस है क्या वहां पर? नहीं है। बहुत नहीं है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, मान के चलो ओके, यूज द प्रिंसिपल ऑफ योर कैलोरीमीटर। तो हम लोग क्या बोलेंगे, लेट व्हेन दे मिक्स क्या बोल सकता हूं, लेट व्हेन दे मिक्स the temperature must be in between 0 to 100 degree centigrade, ठीक है ना, and let it be capital T, ठीक है ना। इसको समझो, बस इतना ही लॉजिक है यहाँ पर, कुछ नहीं है। तो कभी भी ऐसे वाले क्वेश्चन आप मिला रहे हो तो आपका आंसर किसके अंदर आना चाहिए बेटा, 0 से लेके 0 डिग्री सेंटीग्रेड से लेके 100 डिग्री सेंटीग्रेड के अंदर ही आपको आंसर आना चाहिए कभी भी, ठीक है। Yes, sir. रूल क्या है देखो, अच्छी तरह से समझो। whenever you are mixing this, the temperature must बोला है मैंने यहाँ पर, मे भी नहीं बोला है, मस्ट भी किसमें आना चाहिए, 0 डिग्री सेंटीग्रेड से लेके 100 डिग्री सेंटीग्रेड के अंदर ही आपको आंसर आना है, ठीक है। Yes, sir. अगर इसके ऊपर अगर नीचे आया तो उसका मतलब क्या, अगर 0 से नीचे आया मतलब माइनस में रहेगा तो थोड़ा आइस रह जाएगा। अगर आपका आंसर 100 के ऊपर आया यानी थोड़ा स्टीम रह जाएगा। बात समझ में आई? Yes, sir. 0 से लेके 100 के अंदर आंसर आया तो पूरा मेल्ट हो जाएगा बेटा। अगर आपका आंसर सिंप्लीफाई करने के बाद अगर माइनस में आया, -30 -20 आया तो इसका मतलब क्या, थोड़ा Ice. आइस अभी मेल्ट नहीं हुआ। तो हम लोग को वो पूछेगा कि कितना आइस मेल्ट नहीं हुआ। समझ में आया? और कभी ऐसा Yes, होता है sir. कि आप सॉल्व करते हो प्रॉब्लम तो आपके पास आंसर 100 से ज्यादा आ जाता, कभी कभी 120 आता, 140 आता, 240 आता। तो इसका मतलब क्या, पूरा का पूरा स्टीम है ना कन्वर्ट नहीं हुआ। तो कितना स्टीम कन्वर्ट नहीं हुआ वो दैट विल बी आस्किंग इन द प्रॉब्लम। इज दैट क्लियर? Yes, Yes, sir. sir. तो नाउ व्हाट इज द कंडीशन बोलो जल्दी से। whenever you are mixing anything, your answer must be in between 0 to 100 and let the temperature will be capital T, ठीक है।
तो अब इसमें बताओ कौन लूज करेगा और कौन गेन करेगा? स्टीम और Ice आइस will- में Ice will स्टीम lose. क्या Ice करेगा? gain. लूज करेगा, Gain. इस क्या करेगा? गेन Ice will करेगा। gain. या तो आई कैन राइट दैट वन बेटा, लॉस इन स्टीम, लॉस इन स्टीम, लॉस इन स्टीम is equals to gain in ice, gain in ice, gain in ice। क्लियर है? तो देखो स्टीम क्या हो जाएगा, कितना स्टीम है मेरे पास? 1 ग्राम स्टीम into 540, steam will convert into what beta? Water, that is 1 gram of water into specific heat of water into temperature कितना होगा? 100 से आप एक कॉमन टेम्परेचर पे आ रहे हो, कैपिटल टी। ये स्टेप क्लियर है कि और नीटली लिखूं इसको? डायग्राम डाल के बताओ। डायग्राम डाल के बताओ सर। अरे जब से 2 क्वेश्चन डाल के बताया है ना बेटा, मैं 1-2 स्टेप तो डायरेक्टली करने दो मुझे। यहाँ देखो ये स्टीम था, ये स्टीम था। अब ये स्टीम जब कन्वर्ट होगा तो स्टीम कन्वर्ट होके किस में आ जाएगा बेटा? वाटर में बनेगा, ठीक है ना? और आपके पास आइस था, आइस भी क्या हो जाएगा? कन्वर्ट होके वाटर पे आ जाएगा, और वाटर का टेम्परेचर मान के चलो कैपिटल टी है, ठीक है ना? यहाँ पर स्टीम से आप वाटर कन्वर्ट हुआ, isn't it? कितना स्टीम है देखो जल्दी से बताओ, स्टीम कितना है मेरे पास? 100 डिग्री सेंटीग्रेड। सो 100 डिग्री सेंटीग्रेड ऑफ स्टीम विल गेट कन्वर्ट इनटू वाटर एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड बेटा, Yes sir. isn't it? Then ice at 0 degree centigrade will convert into water at 0 degree centigrade, then that water into 0 degree centigrade will convert into water at t degree centigrade। और डिटेल में कर देता हूँ इसको, फिर बाद में और परेशानी हो जाएगी। तो एक और क्या कर सकता हूँ इसको मैं, यहाँ पर देखो स्टीम कितना है? 100 डिग्री सेंटीग्रेड will convert into water at your 100 degree centigrade, ठीक है ना? Then ये ice at 0 degree centigrade will convert into what beta? Water at your 100 degree centigrade, 100 degree centigrade, sorry 0 degree centigrade type will convert into your ice 0 से लेके water at 0 degree centigrade पे आएगा। अब water at 0 degree centigrade and water at 100 degree centigrade both of them are mixing, तो both mix करे तो दोनों मिलके common temperature पे आएगा, that is your common temperature capital T। क्लियर है? Yes sir. Yes. समझ में आया? किसी को समझ में नहीं आया तो पूछ लो, एक बार बता दे दो। स्टीम पहले कन्वर्ट होगा वाटर एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड, आइस एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड विल कन्वर्ट इनटू वाटर एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड। अब दोनों एक कॉमन टेम्परेचर पे आ गए, तो वाटर एट 0 डिग्री, वाटर एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड इज मेल्ट विद योर वाटर एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड, तो दोनों को मिला दिए तो वाटर एक कॉमन टेम्परेचर पे आ जाएगा कैपिटल टी। जैसा मान के चलो आप एक हॉट वाटर है, जैसे पानी नहाने के लिए हम लोग वाटर यूज करते हैं बेसिकली, अगर हीटर लगा दिया तो मान के चलो बहुत ज्यादा गर्म हो गया, तो उसके अंदर हम लोग ठंडा पानी मिलाते हैं कि नहीं मिलाते हैं? अगर ठंडा पानी मिला दिया तो क्या टेम्परेचर ऑफ वाटर, ह्यूज वाटर, क्या बोलते हैं, हॉट वाटर और एक कोल्ड वाटर मिलाए तो कॉमन टेम्परेचर आ गया। Yes, sir. Yes तो sir. वही यूज कर रहे हैं यहाँ पर, वही कॉन्सेप्ट है। तो अब यहाँ पर देखो, यहाँ से यहाँ तक आने के लिए एक एनर्जी हो रही है Q1, फिर यहाँ से यहाँ तक आने के लिए एक और एक एनर्जी हो रही है राइट नाउ, दिस वन इज नथिंग बट ऑफ योर Q डैश, और यहाँ से यहाँ तक आने के लिए Q2 है, ये Q1 डैश, और यहाँ से यहाँ तक आने के लिए Q2 डैश। तो लिखने की भी जरूरत नहीं, मैं यहाँ पर ही डायरेक्टली लिख देता हूँ। देखो तो यहाँ पर हो गया, देखो स्टीम से लेके वाटर को आ रहे हो तो क्या लिखोगे बेटा? M into L of your steam, then water at 100 degree centigrade, MS into your delta T, then here into M into L of your fusion, then here MS into your delta T। आ गया? आ गया सभी को? Yes, sir. तो यहाँ पर लिख रहा हूँ मैं स्टेप, M is nothing but 1 into latent heat of the steam is 540 plus mass is 1 into specific heat of water is 1, टेम्परेचर 100 से T को जा रहा है, यानी हायर से लोअर जा रहा है, तो हायर टेम्परेचर इज 100 माइनस कैपिटल T। ये स्टेप क्लियर है सभी को? Yes, sir. देन यहाँ से यहाँ तक कितना ग्राम ऑफ वाटर? 4 ग्राम ऑफ वाटर, 1 ग्राम ऑफ स्टीम, 4 ग्राम ऑफ वाटर इज कमिंग, 4 into your 80, M is 4, latent heat of steam is ice is what? 40, sorry 80 plus ये कितना हो गया? 4, specific heat of water is 1 into temperature T minus 0। आ गया? Yes, sir. चलो अब इसको सिंप्लीफाई कर लो, दिस वन इज योर 540
plus this one is your 100 minus of your capital T is equals to, ये कितना हो जाएगा बेटा? 4 8 जा 32. हाँ 32. 32 sir. 20. कितना? 320 sir. 320 प्लस ये कितना है? T minus 4 minus 4. 4 into T, that is nothing but of your 40. आ गया सभी को? Sir. तो अभी ये देखो ये कितना हो जाएगा? 540 माइनस ये हम पर आ जाएगा, तो ये हो गया 320, तो ये हो गया 40 माइनस ये हो गया 100 माइनस T. क्लियर है? 540 माइनस 320 कितना है? 120 220 कितना? 220 sir. 920 220. 220 इज इक्वल्स, ये कितना आ रहा है बेटा? 380. 5T minus 100. हाँ तो ये ब्रैकेट ओपन करे तो क्या हो जाएगा बेटा? ये ब्रैकेट ओपन करे तो ये क्या हो जाएगा? प्लस बन जाएगा, ये माइनस ही रहेगा और ये प्लस बन जाएगा. Yes sir. तो कितना बन जाएगा? 40 प्लस T, that will be 5T. ये हो Minus गया 100. 5T माइनस ऑफ योर 100. उतना ही ना? Yes sir. तो अब ये कितना बना? 5T इज इक्वल्स टू कितना आ रहा? 220 माइनस ये माइनस इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा 320. तो 20. T कितना हुआ? 64. 64 sir. आ गया सभी को? Yes sir. Yes Yes, sir. आया सभी को? यहाँ पर मैंने ब्रैकेट ओपन किया बेटा. अगर ये ब्रैकेट ओपन कर रहे हो तो दिस विल बिकम फॉर मी 100 प्लस T. 40 प्लस T विल बी इक्वल टू 5T. दिस इज 100 माइनस 100 इधर चले गया है तो 320. So 5T is equal to 320. 3T is equal to 320 divided by 5. So that will be equal to your 64. Clear है? Yes sir. आ गया समझ में आने वाले क्वेश्चंस? तो क्या आंसर आपको 0 से 60 100 के बीच में है? Yes Yes, sir. sir. 0 से लेके 100 के बीच में तो पूरा कन्वर्ट हो जाएगा. हाँ, sir. ठीक है ना? Yes sir. और एक बार 7 ग्राम ऑफ आइस, 7 ग्राम of your ice at 0 degree centigrade is mixed with 1 gram of steam. 1 gram of your steam at 100 degree centigrade. Find final temperature of mixture. Find final temperature of mixture. करोगे? ट्राई करो सभी लोग. 7 gram of ice at 0 degree centigrade. 7 gram of your ice will convert into what beta? 7 gram of your water. ये कितना टेम्परेचर पे था? 0 degree centigrade पे था. Will convert into 7 gram of your water at your 0 degree centigrade. आया सभी को यहाँ तक? फिर यहाँ पर कितना है? 1 gram. 1 gram of your steam. 1 gram of your steam at 100 degrees centigrade. At 100 degrees centigrade will convert into 1 gram of water. 1 gram of water at your 100 degrees centigrade will convert into your 100 degrees centigrade of water. Then उसके बाद ये दोनों मिक्स हो रहे हैं. ठीक है ना बेटा? ये दोनों मिक्स हो रहे हैं. कितना? वाटर एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड एंड वाटर एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड. ये मिक्स होके कॉमन टेम्परेचर पे आ जाएंगे कैपिटल T. ठीक है ना? 10 degrees. 10 degrees. Very good. Who will lose and who will gain beta? Heat lost by steam. Heat lost by steam must be equal to heat gain by ice. ठीक है ना? ये देखो आइस और वाटर है, चेंज इन स्टेट है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? Q is equals to m into L of your ice. यहाँ पर क्या हो जाएगा? Q into L of your vapor. और यहाँ पर कितना हो जाएगा?
So यहाँ पर हो जाएगा Q is equals to ms into your delta t, और यहाँ पर Yes, भी sir. कितना हो जाएगा Q is equals to ms into delta t. ये 0 है 100 है तो t ज्यादा होगा 0 से, ये 100 है t है, 100 विल बी मोर कंपेयर टू t बिकॉज दोनों का मिलके आंसर आपको 0 और 100 के बीच में आ रहा, तो t इज लेसर देन 100 बट ग्रेटर देन 0. क्लियर है? Yes, स्टीम sir. के लिए लिखो. Yes, If I'm sir. writing for the steam, heat lost by the steam, बोलते कितना ग्राम स्टीम है मेरे पास? 1 into 540 plus 1 into specific heat of water is 1 into your, ये आ जाएगा 100 minus t. So that will be equal to, यहाँ पर कितना हो गया 7 into your 80 plus this will be equal to 7 into 1 into your, ये हो जाएगा t minus of your 0. ठीक है ना? मैं जरा नीचे लिख लेता हूँ यहाँ पर. तो ये हो गया मेरे पास 540 प्लस ये हो गया यहाँ पर 100 माइनस ऑफ योर टी, और ये हो गया यहाँ पर 780 7 8 जा, 56, 560. सो ये हो गया 560 प्लस Plus दिस वन इज योर 7 into t माइनस 0, 0. तो ये हो गया 540 प्लस 100 माइनस ऑफ योर टी इज इक्वल्स टू 560 प्लस ये हो गया 70. तो इधर लेके आ लो, ये पूरे टी टर्म्स को एक जगह ले लो और इसको पूरों को एक जगह ले लो, तो क्या हो जाएगा देखो 800 is equals to 80. कितना 800 equals to 80. 80 is equals to 80. हाँ 80 equals to 80. 8 t is equals to 80. is equals to 10. 80. 80. so t is equals to कितना आ रहा 10. 10 डिग्री से आ गया. आ गया सर. अब यहाँ तक तो बहुत आसान था क्योंकि अपने तो आंसर 0 से 100 के बीच में आ रहा था, तो कोई तकलीफ नहीं थी. अगर आप ऐसा कोई प्रॉब्लम ले जहां पर आपका आंसर नेगेटिव में या पॉजिटिव ग्रेटर देन 100 डिग्री के आ गए, तो जब क्या करना है? अब ऐसे वाले क्वेश्चन तो आराम है ना, आप लोग को समझ में आ गए ना. आपके जितने भी अभी तक मिक्सचर के प्रॉब्लम करे हम लोग, वी हैव गॉट द आंसर इन बिटवीन 0 and 100 ओनली. Yes, ठीक है sir. ना? तो अब एक और एक क्वेश्चन ले लेते हैं, देख लो इसको जरा सोच समझ के बोलो. देखो 2 ग्राम ऑफ आइस, 2 ग्राम ऑफ योर आइस एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड is mixed with 1 gram of steam, is mixed with your 1 gram of your steam at 100 degrees centigrade. Find final temperature of mixture. Find final temperature of mixture or final composition or final composition. ठीक है, चलो जल्दी से करके बताओ कितना आ रहा है. क्या क्या मिला रहे हैं हम लोग? 2 ग्राम ऑफ आइस एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड इज मिक्सिंग विथ 1 ग्राम ऑफ योर स्टीम, यानी 2 ग्राम ऑफ योर आइस, 2 ग्राम ऑफ योर आइस is mixed with your 1 gram of your steam, 1 gram of your steam at 100 degrees centigrade. इन दोनों को हम लोग ने मिक्स किया, तो 2 ग्राम ऑफ योर आइस एट व्हाट टेम्परेचर बेटा? 0 डिग्री सेंटीग्रेड विल कन्वर्ट इनटू 2 ग्राम ऑफ योर वाटर एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड. क्लियर है? एंड 1 ग्राम ऑफ स्टीम विल गेट कन्वर्ट इनटू 1 ग्राम ऑफ योर वाटर एट हाउ मच टेम्परेचर बेटा? 100 डिग्री सेंटीग्रेड. अब ये दोनों मिक्स होके फिर एक कॉमन टेम्परेचर के पास आ जाएंगे, दैट इज कैपिटल टी. तो ये कितना आ रहा बताओ जल्दी से. यहाँ पर क्या आ जाएगा? Q is equals to m into L of your ice, और यहाँ पर हो गया Q is equals to m 160 into L of your vapor. 160 degree. 160 160. degree. चेक करते हैं, देखो. Heat lost by steam, heat lost by your steam must be equal to your heat gained by water, heat gained by your ice. Sorry. तो यहाँ पर लिख लो इसका, ये हो गया 1 into your 540 प्लस Plus हो 1. गया 1 into ये हो 100 गया minus 100 माइनस ऑफ योर टी, और ये हो गया कितना? 2 ग्राम्स ना, 2 into your 80
प्लस ये हो गया 2 स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर इज 1 into T T minus minus of 0. तो ये कितना है बेटा? This one is 540 plus this one is 100 minus of your T is equals to, ये कितना है? 2 into 8 160 plus ये हो गया कितना? 2T. 2T. तो 160 को उधर ला लो, so it is 540 minus 160 is equals to 2T. ये कितना बन जाएगा? minus 100 minus T. ठीक है ना? ये कितना आ रहा? 540 minus 160 कितना? 480, sir. This is 480, that is 2T plus of your T minus of your 100. तो ये हो गया 3T. ये ब्रैकेट ओपन कर रहे तो माइनस प्लस बन जाएगा. So this one is 480 minus this will become for me 100. 380 है सर. 380 380 है सर वो. 540 minus 160 5 कितना है बेटा? वो 380 plus 100 है सर. 380 plus 100. 380 है क्या? हाँ सर. This one is 380, so this one is also 380. So this one is 380 plus 100. This one is your 480. That is equals to T. So T is equals to कितना है? 480 divided by 3. तो ये कितना आ रहा? 160 degree. 160. बोलो क्या करना है? Why? कोई बोल सकता है? टेम्परेचर 0 और 100 के बीच में नहीं आया सर. वेरी गुड. तो क्या हो गया यहाँ पर? एक तो एक चमत्कार हो गया. हुआ कि नहीं हुआ? कुछ पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ Yes sir. हम लोग ने क्या बोला था? मिक्सिंग के प्रॉब्लम जब भी आप कर रहे हो तो ये लॉजिक अपने को दिमाग में रखना था. अपने को आंसर किस में आना चाहिए? 0 से लेके 100 में आना है. अगर 0 से लेके 100 में आया तो पूरा का पूरा मिक्सचर जो है ना पानी में कन्वर्ट हो जाएगा या पूरा कंपोजिशन एक ही फेज में रहेगा. अगर आपका आंसर उसके बीच में नहीं है तो आपका आंसर क्या है? गलत. तो क्या हो गया यहाँ पर? एक चमत्कार हो गया. तो करना क्या है? 100 के ऊपर आ गया. 100 के ऊपर आ गया मतलब क्या? 100 के ऊपर आ गया मतलब क्या बेटा? स्टीम रहेगा कि आइस रहेगा? Steam is not completely converted. या स्टीम इज Yes, sir. नॉट कंप्लीटली कन्वर्टेड इनटू वाटर, क्योंकि 100 के ऊपर से ज्यादा है ना बेटा. तो अभी उस कॉम्पोजिशन में स्टीम भरा हुआ है. थोड़ा ना थोड़ा स्टीम रह गया बेसिकली. ठीक है ना? ऐसा. बात समझ में आई? तो अब हम लोग इसको यहाँ पर एक न्यू मेथड यूज करना पड़ता है. सो व्हाट इज दैट मेथड? यू सी, ये अपना एक्चुअल लेवल ऑफ कैलोरीमेट्री है, जहां पर अच्छे वाले क्वेश्चंस बनते हैं और जहां पर 99.99% बच्चे क्वेश्चन छोड़ के आ जाते हैं क्योंकि उन लोगों को करने का मेथडोलॉजी नहीं आता. अगर ये मेथड जो मैं अभी आपको समझा रहा हूं, अगर एक बार आप अच्छी तरह से समझ जाओ तो 99.99% ऐसे वाले क्वेश्चंस आप आराम से कर सकते हो. बट ओनली थिंग इज फॉलो द मेथड द वे आई एम ट्राइंग टू टेल यू इन द सिस्टमैटिक मैनर. एक मेथड मैं आपको इन डिटेल में पढ़ाता हूँ, उसके बाद बाकी के मेथड आप लोग अपनी स्पीड बढ़ाने के लिए थोड़े स्टेप्स आप लोग ओमिट करते हुए चल लेते जा सकते बेसिकली. ठीक है, सभी को क्लियर है? इज इट क्लियर? ऐसा. Yes sir. तो करना क्या है? देखो यहाँ पर जल्दी से देखो, हम लोग को करना क्या है? टेक द टोटल सिस्टम टू ए कॉमन टेम्परेचर. ये जो कॉमन, ये कॉम्बिनेशन आप मिला रहे हो ना बेसिकली, तो पूरे सिस्टम को मान के चलो कि इधर 100 डिग्री सेंटीग्रेड ऑफ वाटर है या 0 डिग्री सेंटीग्रेड ऑफ वाटर पे लेके जाना है. ठीक है, करना क्या अपने को? व्हाट वी नीड टू डू इज क्या करना है? देखो, टेक द सिस्टम. सिस्टम मतलब आइस और स्टीम दोनों मिला के. टेक द सिस्टम टू ए कॉमन टेम्परेचर.
So that may be what? That may be 100 डिग्री सेंटीग्रेड ऑफ वाटर के पास लेके जाओ पूरे सिस्टम को, और 0 डिग्री सेंटीग्रेड ऑफ वाटर के लेके जाओ पूरे सिस्टम। ठीक है ना? बस इतना ही मेथड है, इतना ही मेथडोलॉजी। क्या करना है देखो, जब आपका आंसर अबव 100 या 0 आए तो अपनों को क्या करना है, पूरे सिस्टम को क्या करना है, एक कॉमन टेम्परेचर के पास लेके जाना है। क्या कॉमन टेम्परेचर के लेके जाना है आपको? इधर 100 डिग्री सेंटीग्रेड ऑफ वाटर लेके चलो या 0 डिग्री सेंटीग्रेड ऑफ वाटर लेके चलना। क्लियर है? Yes. Isn't it? तो अब करना क्या है देखो, इसी क्वेश्चन को देखो, अभी क्या करना है अच्छी तरह से देखो। अब क्या करोगे इस क्वेश्चन में, 2 ग्राम ऑफ आइस एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड, 2 डिग्री और 2 ग्राम ऑफ योर दिस वन, आई एम टेकिंग इट राइट नाउ फॉर मी व्हाट, 100 डिग्री सेंटीग्रेड ऑफ वाटर। ठीक है ना? अब ये देखो 2 ग्राम ऑफ आइस एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड है ना, तो 2 ग्राम ऑफ आइस एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड को आप क्या करोगे, यू टेक दिस 0 डिग्री सेंटीग्रेड टू 100 डिग्री सेंटीग्रेड ऑफ वाटर। ठीक है ना? Yes, sir. चल बात करते हैं हम लोग। वी आर टेकिंग द सिस्टम, we are taking the system to 100 डिग्री सेंटीग्रेड ऑफ वाटर। ठीक है ना? तो पहले हम लोग आइस को लेके आ लेते हैं। आइस को कहाँ लाएंगे बेटा? आइस को पकड़ के कहाँ लाएंगे? Centigrade 100 water. डिग्री सेंटीग्रेड ऑफ वाटर के पास लाएंगे। 100 आइस को कान पकड़ के कहाँ लाएंगे? 100 डिग्री सेंटीग्रेड ऑफ वाटर के पास लाएंगे। तो क्या होगा देखो इसका, Q1 इज इक्वल्स टू, तो बोलोगे 2 इंटू योर 80, तो पहले वाटर में कन्वर्ट होगा 0 डिग्री सेंटीग्रेड, प्लस ये हो गया 2 स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर 1 इंटू योर 100 डिग्री सेंटीग्रेड। आया? Yes, sir. Yes, sir. कितना बन गया? 360. 360 कैलोरीज। यानी आइस को कितने टेम्परेचर के पास है बेटा? 0 डिग्री सेंटीग्रेड से 100 डिग्री सेंटीग्रेड ऑफ वाटर के पास लाने के लिए कितनी एनर्जी चाहिए मेरे को? 360 कैलोरीज। देन उसके बाद क्या है मेरे पास? स्टीम है। अब उसके पास मेरे पास क्या है? स्टीम है। स्टीम है ना? स्टीम क्यों क्या कहां पर लाना है? Q2 इज इक्वल्स टू 100 degrees स्टीम को water. कान पकड़ के कहां पर लाना है इसको? देखो ये ऑलरेडी किसके पास है? स्टीम है ऑलरेडी 100 डिग्री सेंटीग्रेड, तो एक ही स्टेप पे आएगा। 100 डिग्री सेंटीग्रेड ऑफ स्टीम से डायरेक्टली 100 डिग्री सेंटीग्रेड ऑफ वाटर पे आ गया, एक ही स्टेप में आ जा रहा हो सीधा सीधा। तो यहाँ पर हो गया Q2 इज इक्वल्स टू m इंटू एल ऑफ योर स्टीम। तो ये बोल रहा है कि मेरे पास तो मास 1 है और लेटेंट हीट ऑफ 540 है, तो मेरे पास इतनी एनर्जी है, तो इसके पास कितनी हो गई? 540 कैलोरीज। ठीक है? Yes, sir. Yes, sir. देखो कौन पार्टी बनाएगा? स्टीम तो पार्टी बना लेगा, क्योंकि आइस बेचारे को कितनी एनर्जी चाहिए थे? 360, और स्टीम को भी कितनी चाहिए थी? 360 ही चाहिए थी, 5. लेकिन इसके पास कितनी है? 540 है कि नहीं? 100 डिग्री Yes. सेंटीग्रेड ऑफ Yes, आइस sir. को आने के लिए कितनी एनर्जी चाहिए? मेरे पास 360 एनर्जी चाहिए थी, लेकिन अब स्टीम के पास कितनी है? 540 है। तो रेसिडुअल एनर्जी कितनी है मेरे पास है? एक्सेस एनर्जी, एक्सेस बोलो, या वी कैन से दैट रेसिडुअल हीट। 180. रेसिडुअल हीट कितना होगा? एक्सेस एनर्जी कितनी है इसके पास? 540 में से 360 निकाल दो, तो इसके पास कितनी ज्यादा एनर्जी बची हुई है? अभी Calories. 180 एनर्जी ज्यादा बची। ठीक है ना? Yes, sir. ये बात समझ में आए सभी को? Yes, sir. ये स्टेप क्लियर है ना? हम लोग पूरे सिस्टम 100 डिग्री सेंटीग्रेड वाटर को ला रहे हैं, तो अब क्या पूरा सिस्टम कहां पर आ गया? देखो 2 ग्राम ऑफ आइस 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे आ गया, और 1 ग्राम ऑफ स्टीम भी 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे आ गया। तो टोटल कॉम्पोजिशन कितना है मेरे पास? देयरफॉर 3 ग्राम ऑफ वाटर इज एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड, है ना बेटा? Yes, sir. क्योंकि दोनों मिला दिया ना, 2 ग्राम और 1 ग्राम दोनों मिला के 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे आ गया, तो 3 grams of water we are having at your 100 degree centigrade. So I can say that now 180 degree calorie is used
is used to convert water to steam. होता है ना बेटा? 180 एक्सेस है ना बेटा? तो 3 grams of water is now at 100 degrees centigrade. So 180 grams of 180 calorie is being used to convert what? Water to your steam. यानी Q is equals to M into mass of your steam into your latent heat of your steam. कितनी एनर्जी है मेरे पास? 180. मास ऑफ स्टीम मुझे नहीं मालूम है कितना है, एंड लेटेंट हीट ऑफ स्टीम तो मेरे पास मालूम है 540. तो मास ऑफ स्टीम कितना बना? मास ऑफ योर स्टीम इज इक्वल टू 180 डिवाइडेड बाय योर 540, यानी दैट विल बी इक्वल टू 1/3 ग्राम्स. क्योंकि अपने को आंसर कितना है बेटा? 160 है ना बेटा? तो थोड़ा स्टीम रह गया. तो कितना स्टीम रह गया? इतनी अमाउंट 180 एक्सेस जो एनर्जी है ना, इतनी एनर्जी विल बी यूज्ड बाय वाटर टू कन्वर्ट बैक इनटू द स्टीम. तो कितना मास ऑफ द स्टीम बन रहा है उससे? कितना मास ऑफ स्टीम बन रहा है? 1/3, isn't it? Therefore I can say that 1/3 gram of steam is there. So remaining will be equal to how much beta? 2/3. So remaining water is how much? Remaining water is कितना? 3 minus 1/3. 3 minus 1/3. टोटल कितना था बेटा? 3 ग्राम ही था ना बेटा? 3 ग्राम होना था, लेकिन उसके अंदर 1/3 अभी स्टीम में है. ठीक है ना? 1/3 स्टीम में कन्वर्ट हो गया. तो 3 minus 1/3 कितना आया? 8/3. तो 8/3 grams of your water is there, isn't it? So what is the final composition? So final composition is कितना? 8/3 grams of water 1/3 grams of 1/3 gram of your steam. क्लियर है? yes sir. बहुत ही Yes, बढ़िया sir. क्वेश्चन है. Sir. इस क्वेश्चन को आप लोग 1 से 4 बार कंपलसरी प्रैक्टिस करना, वरना नहीं आएगा. हाँ बोलो बेटा, बोलो. कुछ डाउट है? Am I audible? Yes. Yes, sir. कुछ डाउट पूछ रहे थे क्या कोई? क्लियर है सभी को ये क्वेश्चन? Yes, sir. Yes. क्या करना है देखो, पहले पूरे सिस्टम को इधर 100 डिग्री सेंटीग्रेड ऑफ वाटर लेके चलो या 0 डिग्री सेंटीग्रेड ऑफ वाटर लेके चलो. अगर यहां पर देखो तो फाइनल कितना आ रहा मेरे पास? देखो फाइनल कितना आ रहा? 540 और 360. तो इसके पास एक्सेस कितना है? 180. तो दिस 180 इज बीन यूज्ड टू कन्वर्ट इन स्टीम. तो कितना मास ऑफ स्टीम कन्वर्ट हुआ वो मैंने निकाला. तो मेरे पास स्टीम कितना है? 1/3. एक्चुअल वाटर कितना था मेरे पास? 3 ग्राम. तो 3 में से 1/3 निकाल दो. 8/3 grams of water is been present and 1/3 gram of steam is been present. क्लियर है? Yes sir. Yes, sir. ऐसे वाले क्वेश्चंस करने आ रहे हैं. अभी आइडिया आ गया ना अभी? हाँ sir. Yes, sir. ये देखो 10 grams Sir, of ice. sir. क्या बोले? नमाज का टाइम हो रहा सर. कल कर लेते. ओके चलो, विल ट्राई टू कंटिन्यू दिस वन. एक क्वेश्चन आप लोग फिर से एक बार अच्छी तरह से प्रैक्टिस कर लो, देन विल ट्राई टू डू इट इन द नेक्स्ट सेशन ऑफ योर क्लास. ठीक है? Okay, sir. चलो, टेक केयर बेटा, बाय. Thank you, sir. Thank you. सर.